Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor, BBD ITM Lucknow. In this lecture series, we are studying about strength of material, also known as Introduction to Solid Mechanics. Current topic we are studying is shear force diagram and bending moment diagram. Today we will study about how to plot shear force diagram for different types of beam. So let us start. So as we know that what is shear force for a beam, it is the algebraic sum of all the vertical force acting to the left or to the right of a section along the span of the beam. Okay. Suppose we have a beam, take it as a simply supported beam, okay, and suppose this is the P force acting on a beam. So if we have to find a shear force on this particular set of loading for this beam, we have to calculate the algebraic sum of all the vertical force either to the left side of this beam and to the right side of this beam. Okay. So this is known as shear force. Now as shear force is a force quantity, so SI unit of shear force is kilonewton or newton, whatever specification given in the beam or we are using, we can take the unit according to it. Okay. Next is bending moment. Now what is the bending moment? Bending moment is the algebraic sum of all the moment due to the force acting on a body on a beam either to the left or the right of the section. Okay. Suppose that we are taking this section as a section of consideration. Suppose we are taking XX section as a section of consideration. So if we have to find the shear force at that section, for shear force at XX section, so it will be happen to be as shear force at a XX section, it happens to be, this is the reaction at A and reaction B. Okay. So shear force at a XX section, it happened to be RA minus P, because the vertical force, total vertical force that is acting on that X section is RA minus P. Now if we have to calculate the bending moment at XX section, then how can we calculate? Suppose this distance is A and this distance is X. This distance is A and this distance is X. Okay. So if we have to calculate this bending moment at X section, then bending moment at XX section is calculated as RA into X. We are forgetting about sign convention, we will study later what will be the sign convention. So RA into X, then vertical force minus P into X minus of A. This is because what are the bending moment acting on this section. So first bending moment will be this moment due to this reaction force, and second bending moment will be due to this applied load, will be in this direction. So net we have to calculate the net bending moment at that particular section, as bending moment is a product of force and distance. Hence the unit of bending moment is said to be Newton meter or kilonewton meter. Okay. Now what will be the sign convention? From for the shear force and bending moment? So actually there are lots of concept for sign convention, so we do not have to get trapped or confused from different types of sign convention. For instant we can use this sign convention. This is one of the most proven sign convention method. So if we are calculating shear force, then if we are moving from left to right side of the beam, suppose let us take the same example, suppose this is P load acting, this is a beam P. Okay. This is the A point and this is the B point. Okay. Now if you have to calculate the shear force on this beam, then for the sign convention that we are going to use, is very simple, that if we are moving from left to right, that is from A to B point, if we are moving from A to B point, then the upward force will be positive and downward force will be considered as negative. Upward force will be positive and downward force will be negative. Simple. It is very simple, that if I am moving from left to right, then upward force is positive and downward force is negative, that is it. But suppose in the case of cantilever beam, cantilever beam looks like this type and this is the P force. So we are moving from A to B point, that is from right to left side. So from if we are moving from right to left side, then we will be vice versa, our above consideration, that
upward force will be taken as positive and downward force will be taken as negative. Upward force will be taken as positive, negative, and downward force will be taken as negative. Upward force will be taken as negative and downward force will be taken as positive. Okay. Similar for this set of beam also. If you are moving from right to left, then this downward force, P force will be positive and RB, what will that reaction will be negative. But if we are moving from left to right, then upward force positive and downward force negative. Very simple. Now what will be the bending sign convention for bending moment? What will be the sign convention for bending moment? It is very simple again. It is very simple. If we are moving from left to right, then clockwise moment, the clockwise moment is taken as positive and anti-clockwise will be considered as negative. If we are moving from left to right, then clockwise movement will be taken as positive, the anti-clockwise will be taken as negative. Okay. If we are moving from right to left, then clockwise movement will be taken as negative and anti-clockwise movement will be taken as positive. Now there will be some more types of consideration for sign convention in the case of bending moment, but for explanation I am explaining to you that suppose this is a moment, suppose this is a beam, suppose we have this simply supported beam, this is a simply supported beam, and this will be anti-clockwise moment and this will be clockwise moment acting on beam. So if we see what is happening to the beam if the moment is acting like this, what will be happen? Suppose this moment will try to bend this beam in a downward direction. This moment will try to bend this beam in downward direction like this. So this is sagging. Now sagging. Suppose we have another case. Will like this, simply supported beam. Another case like this. Okay. Another case like this. Okay. So this is, in this case, the beam will try to move upward like this. So this is hogging case. This is positive moment. This is negative moment. Okay. This is positive moment or negative moment. Overall, if you take the whole summary, that if we are moving from, for a bending moment case, if we are moving from left to right, clockwise moment positive and anti-clockwise moment negative, and the whole calculation is coming out to be positive, then in that case, in that case we have net clockwise moment. But if the net moment is coming out to be negative, then we have case of anti-clockwise moment. Very simple. Similarly, if you are moving from right to left, then clockwise moment will be negative and anti-clockwise moment will be positive. From right to left. Okay. Now there is one important point that we need to study. That what is the point of contraflexure. This is the one of the most important topic of discussion in the chapter of shear force and bending moment. That is, what is the point of contraflexure. So point of contraflexure stand for the point at which bending moment diagram changes its sign. At that point is known as point of contraflexure. Okay. Suppose we have plot the bending moment diagram for a given set of load, and at some point, at any point, the bending moment diagram changes its sign, that is from negative side to towards positive side, or maybe from positive side to negative side. So suppose we are drawing the bending moment diagram like this. Okay. So at this particular point, this is the positive side, this is negative side. Okay. At this point, bending moment is changing its sign from positive to negative side. And at this point is known as point of contraflexure. Okay. This is known as point of contraflexure. At one important notes is also associated with point of contraflexure is that at the point of contraflexure, shear force is maximum,
at the point of contraflexure, shear force is coming out to be maximum. Shear force is coming out to be maximum. Shear force will be coming out to be maximum. Why? We will see in our upcoming slide that why shear force is coming out to be maximum at point of contraflexure. Now let us discuss some shear and moment relationship. Like slope of a shear force diagram, will give the value of applied loading. Slope of the shear force diagram will give the value of applied loading. And here we are saying that there is a minus sign on this, there is a minus sign coming out on this, minus sign. What this minus sign representative? It is just representing the direction, it is representing the direction, okay, it is just representing the direction. So for if we have calculated the slope of a shear force diagram, then the value of slope is value of applied loading at that particular point, or at that particular span, okay, at that particular span. Next is slope of a bending moment diagram. Slope of a bending moment diagram give the value of shear force. Slope of a bending moment diagram will give the value of shear force, okay. Slope of a bending moment diagram will give the value of shear force. Very simple, very simple. From this case, as we know that, as we have discussed in the point of contraflexure, is the point of contraflexure at which bending moment diagram changes its shape, that is from positive to negative or negative to positive, or we can say that the bending moment is equal to 0 at point of contraflexure. So if we see the dm by dx equal to 0, we can recall that our maximum minimum concept from basic mathematics, from calculus, that for any point said to be maximum or minimum, we have to differentiate that set of point. So if dm by dx equal to 0, it means shear force is maximum, V is maximum at that point, okay. Now the next case is now we know that W equal to minus dV by dx, okay, and V equal to dm by dx. So what if we substitute the value of this V in this equation? So W will be coming out as d square m d square x square, okay. This will be the coming out this equation, and this is coming like this, d square m upon dx square, okay. So both equation is applicable for point loading because of discontinuity produced by abrupt change in shear. So this equation and this equation is applied to the case of point loading because for the point loading, the discontinuity is produced due to the sudden increase in shear force at a particular set of point, okay. So what are the steps of calculating shear force and bending moment? So there are 6 to 7 steps that we have to follow rigorously or religiously, so that we can calculate the bending moment diagram or bending moment or shear force and shear force diagram very easily. First step is the calculation of reaction force. Second step is the calculation of shear force at desired location. First we will calculate the reaction force for a given set of beam with given set of loading. Then we will calculate the value of shear force at desired location or the location which is under consideration. Next, calculate the value of bending moment at desired location. The load, shear force and bending moment diagram should be constructed below each other on a horizontal scale and at a suitable scale. Dimension on the beam need not to be scaled but should be relatively proportionate. Dimension of the beam should not be स्केल, सेम स्केल पे नहीं होना चाहिए लेकिन रिलेटिवली होना चाहिए. ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि अगर 45 किलो न्यूटन आ रहा है तो 45 किलो न्यूटन से ज़्यादा 43 किलो न्यूटन हो जाएगा. ऐसा रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को नहीं करना. इस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन करना है कि उसको इजीली हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सके कि ये पॉइंट हायर है, ये पॉइंट लोअर है, या ये लोअर है, ये हायर पॉइंट है. ओके. ऑर्डिनेट ऑफ बेंडिंग मोमेंट एंड शेयर फोर्स वैल्यू नीड नॉट टू बी प्लॉटेड बट टू स्केल. आप जरूरी नहीं है कि आप जो भी ऑर्डिनेट आप प्लॉट करें वहाँ पे उसको मेंशन कर दें, लेकिन ऑर्डिनेट आपको सही से मेंशन करना. ऑर्डिनेट वहाँ पे लिखना कंपलसरी है. कर्वेचर में नीड नॉट टू बी एक्सगरेटेड फॉर क्लैरिटी. एंड नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑर्डिनेट शुड बी लेवल ऑन बोथ. प्रिंसिपल ऑर्डिनेट मतलब जहाँ पे शेयर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है, जहाँ पे मिनिमम है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्रिएट हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो भी कंसिडरेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट या साइलेंट फीचर है उस डायग्राम के, वहाँ पे उसका रिप्रेजेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है ताकि सामने वाला जो भी ऑब्जर्व कर रहा है या एग्जामिन कर रहा है आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स को, तो वो सही से उसको समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए. ओके.
तो सपोज कर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। तो उस केस में हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे, या शेयर फोर्स डायग्राम कैसे प्लॉट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो हम लोग अभी देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग के पास में क्या था, हम लोगों के पास में था कि जब शेयर फोर्स डायग्राम हो तो सबसे पहला स्टेप होता है रिएक्शन फोर्स निकालने का। और रिएक्शन फोर्स निकालने के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोगों को उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस पर्टिकुलर बीम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। ओके, तो सपोज करते हैं हमारे पास इस टाइप का ये बीम दिया हुआ है, तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएं तो हमारे पास ए बी नाम की ए बी एक बीम है और इस बीम पे सिंपली सपोर्टेड है, ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है और ये रोलर सपोर्ट है। तो हिंज सपोर्ट पे हमें पता है कि दो रिएक्शन आता है, हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन आते हैं, तो हिंज सपोर्ट पे हम लोगों ने दो रिएक्शन लिया, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का नाम दिया, वर्टिकल का RVA और हॉरिजॉन्टल का नाम देते हैं RHA। सिमिलरली यहाँ पे रोलर सपोर्ट है तो रोलर सपोर्ट पे एक ही रिएक्शन आएगा, तो रोलर सपोर्ट का रिएक्शन हम लोग लेते हैं RVV। उसके बाद इस पर पॉइंट लोड कितना आ रहा है, सेंटर पे पॉइंट लोड लग रहा है तो पॉइंट लोड D आ रहा है, P आ रहा है, और ये सेंटर पे यानी कि यहाँ से ये L/2 डिस्टेंस पे है और ये भी L/2 डिस्टेंस पे है। ओके, ये भी L/2 और ये भी L/2। तो हमें इसका रिएक्शन निकालना है, तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम सबसे पहले करते हैं समेशन ऑफ Fx इक्वल टू 0 करेंगे, समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स में एक ही फोर्स है तो R हॉरिजॉन्टल एट A पॉइंट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या लिखते हैं, नेक्स्ट होता है समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0 हम लोगों ने लिख लिया। वर्टिकल फोर्स कौन कौन से हैं, दो फोर्स हम लोगों के पास में वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्स लिखेंगे। तो वर्टिकल फोर्स हो जाएगा RVA प्लस RVB इक्वल टू नेट फोर्स ऊपर से कितना फोर्स आ रहा है तो P के बराबर में आ रहा है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन निकला। दूसरा क्या इक्वेशन होता है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0, तो हम लोग समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट A इक्वल टू 0 कर लिया। तो मोमेंट पे A पॉइंट पे कौन कौन मोमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, एक तो ये मोमेंट क्रिएट कर रहे होंगे, दूसरा ये। अब हम साइन कन्वेंशन यहीं पे समझ लेते हैं। साइन कन्वेंशन क्या होता है, हमें पता है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो RB अगर हम लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं, इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो RB की वजह से ये यहाँ पे RB की वजह से ये पॉइंट पे कौन सा मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, ये RB की वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो माइनस RVB इंटू L लिखेंगे, और इस P के कारण से कौन सा मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, तो प्लस P इंटू L/2 करेंगे, और RVA के कारण तो कोई मोमेंट आ नहीं रहा होगा तो इक्वल टू 0 करेंगे। तो इस इक्वेशन से हम निकालेंगे, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी विल कैलकुलेट RVV इक्वल टू P/2। और इस इक्वेशन को जब इस वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में लिखेंगे RVA, तो यहाँ से निकलेगा, यहीं से निकलेगा RVA इक्वल टू P/2, यानी कि हमारे पास दोनों रिएक्शन फोर्स आ गए हैं, RVA इक्वल टू P/2 एंड RVB इक्वल टू P/2। ओके, नेक्स्ट, तो हम लोगों ने RVA इक्वल टू और RAI इक्वल टू P/2 निकाल लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो निकालना होता है कि अब इस पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें कहाँ निकालना है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू के लिए, शेयर फोर्स का मतलब क्या होता है कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स टुवर्ड द लेफ्ट एंड दैट ऑफ सेक्शन। ओके, तो सपोज करते हैं कि हम कोई XX सेक्शन कट करते हैं, यहाँ पे एक XX सेक्शन हम लोगों ने कट किया। ये XX सेक्शन जो है ये डिस्टेंस X डिस्टेंस है फ्रॉम द फर्स्ट A सपोर्ट, फ्रॉम द A से ये X डिस्टेंस पे है, A एंड B है, फ्रॉम A से ये X सपोर्ट पे X डिस्टेंस पे है। तो अगर हमें इस पॉइंट पे अगर XX पॉइंट पे अगर हमें यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, तो हमें पता है कि समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्स। तो सपोज करते हैं कि नेट जो वर्टिकल फोर्स आ रहा था वो V डायरेक्शन में आ रहा था, तो अगर V की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V इक्वल टू क्या, यहाँ पे समय अगर नेट वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, तो XX सेक्शन पर नेट वर्टिकल फोर्स तो P/2 ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग देख सकते हैं कि अगर एट x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन L/2, x ग्रेटर देन 0 एंड x लेस देन L/2 अगर करते हैं, मतलब x 0 से यहाँ से ज़्यादा है लेकिन L/2 से कम है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि हमारे पास नेट वर्टिकल फोर्स 0 से L/2 तक के बीच में क्या है,
0 से L/2 तक के बीच में क्या है, 0 से L/2 तक के बीच में क्या है, हमारे पास एक ही वर्टिकल फोर्स आ रहा है जो कि रिएक्शन फोर्स है, तो SF V इक्वल टू P/2। अब इसका साइन प्लस हो गया माइनस होगा, तो बहुत ही सिंपल है। हम लोगों ने क्या बात किया था कि अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव, तो हम लोग लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ही मूव कर रहे हैं, तो हम लोग अपवर्ड फोर्स को क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, डाउनवर्ड फोर्स को निगेटिव लेंगे, तो ये अपवर्ड फोर्स है तो ये पॉजिटिव रहेगा। परफेक्ट। उसके बाद जब हम इस सेक्शन को, ये एक्स एक्स सेक्शन को कहीं यहाँ पे ले आते हैं, ये एक्स एक्स सेक्शन को हम लोग कहीं यहाँ पे ले आते हैं। अब एक्स एक्स सेक्शन यहाँ से हट के, यहाँ से रिमूव करके हम लोगों ने कहाँ ला दी, यहाँ पे ला दिया, यानी कि मिड पॉइंट से आगे ले गए, मिड पॉइंट से आगे ले गए। तो उस केस में यहाँ पे अब x का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास अब नया x है, तो अब यह x क्या है, x ग्रेटर देन 0 बट एंड x लेस देन l, x ग्रेटर देन 0 है और x लेस देन l है, x ग्रेटर देन 0 है और लेकिन l से कम है। तो अब यहाँ पे इस सेक्शन पे अगर आपको नेट वर्टिकल फोर्स निकालना है, हम लोगों को अगर नेट वर्टिकल फोर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। यहाँ इस सेक्शन तक में कितने वर्टिकल फोर्स आ रहे हैं, एक तो रिएक्शन फोर्स आ रहा है, दूसरा ये फोर्स क्रिएट हो रहा है P किलो न्यूटन का, यानी कि SF एट XX लिखेंगे, SF एट XX लिखेंगे फॉर दिस केस के लिए। इस केस के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो इस केस के लिए हम लोग के पास क्या आ जाएगा, इसके केस में आ जाएगा P/2। अपवर्ड फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, डाउनवर्ड फोर्स निगेटिव है, तो P/2 माइनस P, यानी कि ये आ जाएगा माइनस P/2, ये क्या आ जाएगा माइनस P/2। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, माइनस P/2 आ जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे अगर x इक्वल टू L/2 पे कितना आएगा, x इक्वल टू L/2 पे कितना आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्लस P/2 था और ये माइनस P/2 है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो इसने साइन चेंज किया होगा, साइन कहीं ना कहीं चेंज किया होगा। तो अब ये साइन चेंज करने वाली बात जो है ये हम कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल पॉइंट पे। तो अगर हम एट x इक्वल टू L/2 करेंगे, तो जब भी शेयर फोर्स डायग्राम अगर हम लोग प्लॉट कर रहे होते हैं और वहाँ पे अगर पॉइंट लोड होता है तो वहाँ पे हम लोग के पास में एक कंडीशन आ जाती है, ये एक सिचुएशन आता है जो कि हम लोग एनालिसिस करना होगा कि जब भी शेयर फोर्स डायग्राम अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस शेयर फोर्स डायग्राम पे हम या तो शेयर फोर्स डायग्राम के लेफ्ट की बात करेंगे सबसे पहले और उस शेयर फोर्स डायग्राम के राइट की बात करेंगे, आइडर टू द लेफ्ट बात करेंगे एक बार और उसका राइट बात करेंगे, एक बार लेफ्ट बात करेंगे एक बार राइट बात करेंगे, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट। यानी कि अगर इस पूरे ऑब्जर्वेशन को एनालाइज करें, तो अगर हमें x इक्वल टू L/2 पे निकालना हो, यानी कि इस पॉइंट लोड के पॉइंट पे निकालना हो, तो एक बार हम लोग इस x डैश सेक्शन पे देखेंगे और ये एक बार ये सेक्शन पे देखेंगे। इसका एक मतलब क्या हो रहा है कि एक बार हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे SF ये सेंटर पॉइंट अगर C ले लेते हैं, SF एट जस्ट लेफ्ट ऑफ C, तो लेफ्ट ऑफ C से पहले कितने फोर्स आ रहे हैं, बस एक ही फोर्स आ रहा है P/2, तो ये फोर्स कितना हो जाएगा P/2। दूसरा अगर जस्ट राइट ऑफ C की बात करेंगे, जस्ट राइट ऑफ C, तो SF एट जस्ट राइट ऑफ C की पे अगर हम कैलकुलेट करें तो राइट ऑफ C जैसे ही यहाँ पे आएगा तो यहाँ तक में ये एक ये लोड आ रहा है और एक ये लोड आ रहा है, यानी कि P/2 माइनस P इक्वल टू माइनस P/2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शेयर फोर्स डायग्राम जो है वो यहाँ कहीं पे पॉइंट उन्होंने अपना चेंज किया है, यहाँ पे उन्होंने अपना क्या किया है, पॉजिटिव टू निगेटिव गए। उसके बाद एट x इक्वल टू L पे निकालेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे, तो ये भी पॉइंट लोड है, यहाँ पे भी हम लोग दो बार निकालेंगे, एक बार एक पॉइंट लोड से पहले, रिएक्शन सपोर्ट से पहले, दूसरा रिएक्शन सपोर्ट के बाद में। एट x इक्वल टू L निकालते हैं तो जस्ट लेफ्ट ऑफ B, तो जस्ट लेफ्ट ऑफ B में कौन कौन से लोड आ रहे थे, जस्ट लेफ्ट ऑफ B में एक ये लोड आ रहा था और एक ये लोड आ रहा था, तो सेम रहेगा माइनस P/2 ही आ रहा था जो इतना आ रहा था। और उसके बाद निकालेंगे जस्ट राइट ऑफ B, तो जस्ट राइट ऑफ B की अगर हम लोग बात करें, तो राइट ऑफ B के केस में कौन कौन सी वैल्यू आ रही थी, तो एक आ रही थी प्लस P/2 माइनस ऑफ P, और दूसरा ये अपवर्ड फोर्स है तो ये भी पॉजिटिव, तो प्लस P/2, यानी कि वैल्यू कितनी आ रही थी, वैल्यू जीरो आ रही थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग हर एक पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद अगर आप बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करें, सेम केस के लिए, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना भी सेम है, बस एक्स डिस्टेंस पे अगर हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे,
अगर हम इस डिस्टेंस पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे थे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाएंगे। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कैसे बनेगा, तो बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाना बहुत सिंपल है। बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा सेक्शन लेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज हम इंक्लूड कर रहे हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज। तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेज लेने के लिए हमें ये सेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा, एक ये सेक्शन इंक्लूड करना पड़ेगा, ओके। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, m एट x आ जाएगा, x आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम एक मोमेंट इक्वेशन बनाएंगे mxx, अब निकालेंगे, यानी कि बेंडिंग मोमेंट एट x सेक्शन कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले ये p/2 क्लॉकवाइज मोमेंट है, p/2 इसके रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज मोमेंट है, यानी कि p/2, और डिस्टेंस कितनी है, तो ये x डिस्टेंस है, और ये p के कारण ये डिस्टेंस कितनी आ रही होगी, माइनस, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा तो माइनस लेंगे, तो माइनस p इंटू x माइनस l/2। अब इस इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा कि एक जनरल इक्वेशन निकल गया हर एक सेक्शन पे। अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, यानी कि इस पॉइंट पे अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इस पॉइंट की बात हो रही होगी, तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 के बराबर में हो जाएगी। दूसरा कहाँ पे बात करेंगे, दूसरी बात हम लोग करेंगे कि अगर हम एट x इक्वल टू l/2 पुट करेंगे तो x इक्वल टू l/2 पुट करने पे हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, और x इक्वल टू अगर l पुट करेंगे तो हमारे पास फिर से वैल्यू क्या होगी, x इक्वल टू 0 पे होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे शेयर फोर्स डायग्राम फॉर अ यूडीएल के केस में। तो यूडीएल के केस में भी सिमिलर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में हम क्या करेंगे, रिएक्शन फोर्स निकाल लेंगे। रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, तो रिएक्शन फोर्स इक्वल टू WL/2 और WL/2। और इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में अगर हमें शेयर फोर्स डायग्राम निकालना है तो अगर एक्स सेक्शन अगर हम लेते हैं, तो एक्स सेक्शन पे क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन बनेगा, तो R SF एट एक्स सेक्शन निकालेंगे, SF एट एक्स सेक्शन निकालेंगे, कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी RA अपवर्ड फोर्स माइनस W, और ये एक्स सेक्शन यहाँ कहीं होगा, ये एक्स सेक्शन होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा x, तो माइनस RA माइनस W इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, हर एक x की वैल्यू पे हम शेयर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी कि x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू l/2 सेंटर पे कितनी वैल्यू होगी, x इक्वल टू l पे वैल्यू कितनी होगी, और जो वैल्यू प्लॉट आएगी हम उसको कैलकुलेट करके अपने पास में रख लेंगे। उसके बाद अगर सेम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए भी एक्स इक्वेशन का डायग्राम बनाएंगे। तो मोमेंट एट एक्स सेक्शन क्या हो जाएगा, तो RA इंटू एक्स तो सबसे पहले ले लेंगे, RA इंटू एक्स, और W के कारण क्या हो जाएगा, तो W इंटू एक्स, ये तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया W इंटू एक्स, और इसकी CG कितनी पे होगी, तो x/2 पे होगी, यानी कि एक इक्वेशन बन के आएगा हम लोग के पास में RA इंटू एक्स माइनस W x²/2, ओके, ये इक्वेशन बना, ओके। सो इन अपकमिंग क्लास वी विल स्टडी अबाउट हाउ टू प्लॉट different set of shear force diagram and bending moment diagram on a practical example, okay. Thank you.